Assalamu alaikum everyone. My name is Naveed Beg and I'm head of marketing Sana Safina. First of all, thank you Salman for inviting me, and I'm very happy to have these kind of sessions, and it would be great inshallah next time hum in person करें तो it's more knowledgeable and more more interactive. तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है. Can you guys hear me clearly? Yeah. जी. Yes, Sure. sir. Salman, can you start the presentation a little bit? Sir, you are on mute. Salman, mute हो तुम. Manika, I've just downloaded it. I'm just playing it. Just Okay. give me a minute. अच्छा, just जब तक ये कर रहे हैं, let me give you my introduction. I've been working for Sana Safinas for 5 years, alhamdulillah, and I've been with fashion industry for like 8 years, 9 years in total. My experience apart from fashion, I have worked for service industry, Sentiments Express. Yeah. Can you guys see the presentation? Yeah. Yes, sir. Okay. ठीक है. Yes, sir. Okay. So second slide, Salman. Just on my intro. Salman, So basically, I work for retail, I work for fashion, I work for lifestyle brands, I work for TCS, Giordano, Interworld, TPL Life Insurance. I haven't mentioned, and Sana Safinas. And Sana Safinas was the, I think, longest tenure I've been working for. So, marketeer, जो है ना वो, it's by nature. It's not something that person would like to, कि बस मार्केटियर बन जाए, बन नहीं सकता. उसको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, and he has to be inborn. This is something inborn. You need to speak. That's what it takes to be a marketer. If you can sell yourself, if you can sell anything, you can be a marketer. That's the key. So basically, what's in your head needs to be on the paper. What's in your ideation needs to be on the screen. ये हम इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं एज अ मार्केटियर, एज अ मार्केटिंग हेड, एज अ मार्केटिंग पर्सन, कि आपके जो आइडियाज हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करके लेके जाया जाए टू द एंड प्रोडक्ट एंड टू एंड कंज्यूमर. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सलमान, ये द टॉपिक फॉर टुडे इज बेसिकली द कंप्लीट जर्नी ऑफ एन एड. एड होता क्या है? एड इज समथिंग जो कि एक प्रोडक्ट, एक सर्विस आप किसी कस्टमर को बताते हो कि दिस इज इन द मार्केट, दिस इज माय ऑफरिंग, एंड एड इज अ मीडियम जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को कन्वे करते हो. अब वो एड की नीड क्या होती है, क्यों जरूरी होता है? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन स्टार्ट हो गया है इन डिफरेंट ब्रांड्स कि मार्केटिंग इज नॉट नीडेड. एंड आई टोटली बिलीव कि ये बहुत गलत कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि मार्केटिंग जरूरत ही नहीं है, मार्केटिंग की एड्स की जरूरत ही नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड ऑल दैट. एंड आई थिंक द ब्रांड्स हु आर डूइंग इट आर losing the market share, because whenever you're out and about, you'll be in the heads of the consumers, you'll be in the heads of the customers. If they're not buying, that's other thing. But अगर आप नहीं हो प्रेजेंट, अगर आपने ऐड नहीं किया, अगर आपने कोई चीज कम्युनिकेशन नहीं की, you are actually dying. You're a dying brand. Just the biggest example I would say is Nokia. You must have seen Nokia कहाँ था, कहाँ पहुंच गया है. People, the other brand जिसको हम Macintosh, कोई नहीं पूछता था. Macintosh ने अपने आप को Mac किया, Mac से Apple पे आ गया. So वो एक उसकी जर्नी, उसने अपने आप को जिस तरह पोजीशन किया है, वो कैसे पोजीशन किया है? अपने आप को दिखा के, अपने आप को प्रेजेंट करके. तो आपका एड जो है ना, वो आपको उस स्टेज पे लेके जाता है जहां आप जाना चाहते हैं या अपनी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं. सो दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ एन एड. और एड
कि वजह क्या होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम that needs to be addressed, and that addressing is basically the ad. Next slide please. Okay, the first and the most important is the brief. आप अगर मार्केटिंग एजेंसी साइट पर है या आप मार्केटिंग क्लाइंट की साइट पर है, आपकी जो ब्रीफ है दैट डिफाइंस योर एड. अगर आपकी ब्रीफ सही नहीं है, इफ योर ब्रीफ इज नॉट अलाइंड विद योर ऑब्जेक्टिव, इज नॉट अलाइंड विद द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, then the ad is not going to work. It's going to go in vain. It's going to be useless. So creative brief होती क्या है कि आप उसके अंदर अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, अपनी ब्रीफ जो स्पेसिफिक, जो आपकी प्रॉब्लम के अलावा जो आप चाहते हैं कस्टमर्स को बताना, वो क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर आता है. एंड द ब्रीफ हैज टू बी वेरी इलैबोरेटिव सो दैट जो एजेंसी है, जो क्रिएटर है, जो डायरेक्टर है, जो उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, जो एड डिजाइन करेगा, उसकी समझ में आए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है. अगर मैं बहुत छोटी सी चीज आपको बता दूं कि भाई ये इसका बस प्रॉब्लम है, छोटा सा स्टेटमेंट, तो आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मैं किस तरह इसको लेके जाऊं. सो ब्रीफ एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप एड्रेस किसको करना चाह रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी टोन क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी क्या है. अगर आपको ये सारी चीजें, ये चेकलिस्ट है आपकी, अगर ये चेकलिस्ट नहीं बनी हुई तो आपकी ब्रीफ बहुत वीक होती है. एंड व्हेन यू हैव अ वीक ब्रीफ, यू गेट अ वीक प्रोडक्ट आउट ऑफ इट. नेक्स्ट. Okay, so once the brief is finalized, then you make the strategic planning and insights. What is the insight? Market research. दूसरे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या क्या नीड्स हैं, क्या नीड है इस चीज की या नहीं. इफ यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं सना सफीनाज की, इफ आई एम लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो आई नीड टू सी कि उस जैसी प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड्स कहाँ कहाँ ऑफर कर रहे हैं, कितने में ऑफर कर रहे हैं, किस तरह की मार्केटिंग की है, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, किस टारगेट ऑडियंस को प्रेजेंट किया. आई नीड टू हैव द मार्केट रिसर्च. इफ आई एम नॉट डूइंग द रिसर्च राइट, देन आई एम लॉस्ट अगेन. बिकॉज मैं अगर उसी चीज को, लाइक फॉर एग्जांपल द अदर ब्रांड हैज ऑलरेडी डन इट, राइट, मैंने भी वही चीज बगैर रिसर्च के कर दी, सो इट्स गोना बैकफायर, राइट. बहुत सारे ब्रांड ऐसे करते हैं कि एक ब्रांड ने कर लिया, उसने भी फौरन कॉपी कर लिया, तो होगा क्या कि उस ब्रांड्स के ऊपर जिसने पहला स्टेप ले लिया दैट्स फाइन, वो दूसरा वाला जो है ना, जिसने रिसर्च नहीं की, दैट्स गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम, बिकॉज लोग उसको बैकलैश करना स्टार्ट कर देते हैं. सो कंज्यूमर इनसाइट, द सेकंड पॉइंट इज द कंज्यूमर इनसाइट. कंज्यूमर इनसाइट इज बेसिकली सो मच इंपॉर्टेंट कि भाई ये प्रोडक्ट क्या कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को रिक्वायर्ड है भी या नहीं है. अगर किसी एफएमसीजी की बात करते हैं, या अगर किसी, एफएमसीजी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, बिकॉज आपकी नीड है, फॉर एग्जांपल आपको यू नीड बियर्ड ऑयल. अब इज देयर अ मार्केट फॉर इट, या आपने बस प्रोडक्ट लॉन्च कर दी? यस, देयर इज अ नीड. आपने सर्च किया कि मेन को क्या क्या इश्यूज है, उनको बियर्ड में इरिटेशन है, ड्राइनेस है, क्या है, ये पूरी रिसर्च करके कंज्यूमर की इनसाइट निकाल के देन यू क्रिएटेड अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट. सो कंज्यूमर इनसाइट इज दैट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने बगैर इनसाइट के कोई प्रोडक्ट बना दी, उसकी नीड ही नहीं थी, तो आपको जरूरत ही नहीं है. द बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड से इज, अगर हम बात करें करीम की, व्हाट डिड करीम डू? करीम ने जब आया था यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो उसका मेजर मसला ये था कि लोगों को टैक्सी स्टैंड्स पे या बाहर रोड पे जाना पड़ता था रिक्शा ढूंढने के लिए या ऑटो ढूंढने के लिए. दैट वाज फर्स्ट अनसेफ, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, आपके रेट्स का इशू होता था, पैसों का इशू होता था, इट्स नॉट सेफ. अगर कराची की बात करें स्पेशली, सॉरी. तो करीम ने क्या किया, डोर स्टेप पे आपने अपनी गाड़ी बुला के उस जगह पे जाना है, प्री डिफाइंड एवरीथिंग. सो दैट वाज अ नीड ऑफ द टाउन, दैट वाज अ नीड द कंज्यूमर वांटेड. वो कंज्यूमर इनसाइट थी कि इनको प्रॉब्लम क्या आती है, उससे क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है. तो ये करीम ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया एंड इट कैप्चर्ड द मार्केट लाइक दैट. सो कंज्यूमर इनसाइट वाज देयर, रिसर्च वाज देयर. सो तो पूरा एक, आप जब एड बनाया करीम ने, या इसी तरह की किसी ने, तो उसने इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है.
अगर आप देखें तो इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव दीज इन लाइन। तो प्रोपोजिशन क्या होती है? बिग आइडिया। बिग आइडिया क्या होता है? जो आपने थॉट किया और उसका पूरा जो क्रक्स है, दैट इज द बिग आइडिया। ये पूरा एड जो आपने डिजाइन किया है उसकी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज द बिग आइडिया। नेक्स्ट प्लीज। ओके, वंस द आइडिया, बिग आइडिया इज लॉक्ड, फिर आप क्या करते हैं कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, आपने ब्रीफ रेडी कर ली है, आपने मार्केट इनसाइट ले ली, अब आपने एड सोचा है। अब वो जो एड सोचा है उसकी क्रिएटिव आइडिएशन स्टार्ट होती है, स्टोरी बोर्ड स्टार्ट होता है कि अब मैंने जो एड है वो किस तरह बनाना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। एक रफ स्केच बनाया जाता है, क्या मैं आउटडोर शूट करूं, इन हाउस शूट करूं, क्या मेरे प्रोडक्ट किस तरह से दिखना चाहिए, एक पूरा स्केच बनता है। ये एक क्रिएटिव डायरेक्टर, कॉपी राइटर एक साथ बैठते हैं, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उस रिसर्च को अंडरस्टैंड करते हैं, उस इनसाइट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बिग आइडिया को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एक क्रिएटिव बोर्ड बनाते हैं। हम लोग इसको जैसे फैशन इंडस्ट्री में इसको मूड बोर्ड कहते हैं। तो व्हाट वी डू, हमारे पास कोई प्रोडक्ट अगर आ रहा होता है तो हम उसकी इसी तरह से सारी इनसाइट्स वगैरह लेने के बाद फिर एक मूड बोर्ड डेवलप करते हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया मूड बोर्ड। लोग पहले स्टोरी बोर्ड, स्केच वगैरह बन रहे होते थे, अभी भी बनते हैं, बट मोस्टली लोग अब पिंटरेस्ट के ऊपर, जो फैशन इंडस्ट्री है वो पिंटरेस्ट के ऊपर इंटरनेशनल रेफरेंसेस देख के पूरा मूड बोर्ड डिजाइन करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पूरे मूड बोर्ड के हिसाब से बनेगा। ये मूड बोर्ड को फिर हम शूट करेंगे, पूरा एड डेवलप करेंगे। तो इट्स इजी फॉर द आर्ट डायरेक्टर्स एज वेल टू एग्जीक्यूट दैट एंड टू मेक, to make it happen. Next. Okay, the pitch. ये बहुत चीज, the client doesn't buy the ad, they buy the confidence that this ad will solve their business problem. If you are an agency guy, so you would understand this better, because जिस तरह agency pitch करती है sorry, जिस तरह एजेंसी पिच करती है तो आपका कॉन्फिडेंस ही जीतती है, अदरवाइज तो हर कोई आपको आइडिया प्रेजेंट कर रहा होता है। सो दैट्स अ लाइन, जो पिच होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। द नेक्स्ट इज द प्री प्रोडक्शन। अच्छा, प्री प्रोडक्शन लोग ये स्टेप जो है ना लोग मिस कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बस एड हो गया, डिजाइन हो गया, लेट्स स्टार्ट द शूट। नो, एड बनाने के लिए जो पीपी, हम इसको कहते हैं प्री प्रोडक्शन मीटिंग, पीपीएम कहते हैं, प्री प्रोडक्शन मीटिंग। प्रोडक्शन मीन्स जो एड बनना होता है उसको प्रोडक्शन कहते हैं, शूट्स वगैरह। तो उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्टर बैठता है, डिसाइड करता है कि किस लोकेशन पे होगा, उसकी थीम क्या होगी, उसके कपड़े कैसे होंगे, उसका मूड कैसा होगा, उसकी लाइटिंग कैसे होगी। ये प्री प्रोडक्शन जो ब्लूप्रिंट बनता है ना पूरा, ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने प्रेजेंट किया जाता है क्लाइंट के आगे या ब्रांड के आगे कि इस तरह आपका प्रोडक्ट पूरा नजर आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये पीपीएम जो होती है ना, प्री प्रोडक्शन मीटिंग, दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्लाइंट, ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो उस ब्रांड को कि मेरा जो शूट होगा वो इन लाइंस पे चलेगा। उसमें एक एक स्टेज डिफाइन होता है, पहला फेज में ये शूट होगा, दूसरे फेज में ये शूट होगा, तीसरे फेज में ये शूट होगा। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट को, ब्रांड साइड को पता होता है कि किस तरह से पूरा फ्लो चलेगा। तो ये पीपीएम इज दैट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें सारी चीजें डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट। अच्छा, देन कम्स द प्रोडक्शन। वंस द पीपीएम इज लॉक्ड, बिकॉज जब जो जो चीजें लॉक होती जाती हैं फिर वो चेंज नहीं की जाती। वो रीजन ये है चेंज करने, माइनर ट्विकिंग तो समझ आती है बट मेजर चेंजेस कुछ नहीं होते, क्योंकि वंस द पीपीएम इज लॉक्ड तो डायरेक्टर, everyone works in the single direction। जो आपने बिग आइडिया लॉक किया, पीपीएम में चीजें लॉक की, वो ही प्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि एक अलाइन होके सारी चीजें क्लियर हो रही होती है। तो वंस द एवरीथिंग इज क्लियर, नथिंग शुड बी मूविंग हियर एंड देयर। तो ये प्रोडक्शन के अंदर आपका लाइट्स, कैमरा, एक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग एट दैट मोमेंट। हाँ, बहुत दफा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई मिसहैप हो गया, कोई सडन इशू आ गया, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाती हैं बट माइनर, राइट, माइनर। और एज अ मार्केटिंग हेड आपको मेक श्योर करना होता है जो पीपीएम में डिसाइड हुआ है वो ही फॉलो हो रहा हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पूरे मूड बोर्ड की क्लियर हो। एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज, राइट? तो दैट इज द प्रोडक्शन पार्ट। यस। अच्छा, एक चीज है, प्रोडक्शन जो है, बहुत दफा लोग देखते हैं ऐड बनने में, यार इतना आसान ऐड है, छोटा सा ऐड है, बट वो छोटा सा ऐड होता नहीं है।
मतलब I've been in the fashion industry for like 8 years and हम लोगों ने बहुत दफा, आप लोगों ने अगर देखा हो कभी सना सबीनास का एड, लाइक विंटर एड्स और लग्जरी का हमारे एड्स, they are extensive. It's a storyboard, it's a love story, it's a mood board जो पूरा एक स्टोरी डिफाइन कर रहा होता है. It's not a 1 day shoot, it's a 5 day shoot जिसके अंदर ऑल टाइम, मतलब सुबह आपको अर्ली उठ के 3 o'clock पे रेडी होना होता है, मेकअप स्टार्ट होता है, 5 o'clock आपका रोल टाइम होता है, 6 o'clock आपका रोल टाइम होता है, फिर वो ऐड जाता है रात तक, जब तक कि वो पूरा मूड बोर्ड डे 1 का क्लोज ना हो रहा हो. सो दैट इज द प्रोडक्शन थिंग. और एड इतनी आसानी से हम जो देख लेते हैं, 30 सेकंड में वेरी गुड एड अच्छा बन गया, उसके पीछे जो साइंस है ना वो बहुत लगती है. इट्स नॉट इजी. सो नेक्स्ट, ओके, द पोस्ट प्रोडक्शन. अच्छा, वंस द शूट इज डन, एवरीथिंग इज डन, आपने टीवीसी बना लिया, टीवीसी बना लिया, टीवी कमर्शियल बन गया, डिजिटल आपने एड्स एडाप्स बना ली, एवरीथिंग इज डन, शूट हो गया, या बेसिक फोटोग्राफी आपने कर ली, तो उसकी पोस्ट प्रोडक्शन जो होती है ना, उसको मैजिक कहते हैं हम, कि वी नीड टू ऐड द मैजिक. व्हाई? क्योंकि ग्रेडिंग आप लोगों ने कलर ग्रेडिंग का नाम सुना होगा, तो ये बहुत जरूरी होता है कि उसको एडिट किया जाए. उसमें बहुत चीजें ऐड होती हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो टू एडिट. जितना टाइम आपका शूट में लगता है ना, उससे ज्यादा टाइम पोस्ट प्रोडक्शन में लगता है, एडिट में, क्योंकि उसका जो आपने, अच्छा ये सब लिंक है जो आपने पीपीएम की होती है, जो मूड सेट किया होता है, जब आपने शूट कर लिया उसके बाद उसका पूरा जो मूड है ना, जो कलर थीम आपने चूज की है, जो ग्रेडियंट्स आपने पहले से चूज किए, जो टोन आपने चूज किए, वो सब पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर बना ली जाती है, कि पोस्ट प्रोडक्शन में वो मैजिक के तौर पर उसको उसमें अडेप्ट किया जाता है. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ पोस्ट प्रोडक्शन. अगर आप रॉ देखेंगे आप कहेंगे यार ये क्या है, मगर जब वो पोस्ट प्रोडक्शन होकर आता है, जब मैजिक उसमें ऐड किया जाता है, तब आपको लगता है यस, इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव एक्चुअली प्लान्ड. सो उसके अंदर नैरेटिव्स होते हैं, उसमें विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, उसमें कलर ग्रेडिंग होती है, उसमें साउंड ऐड किया जाता है, तो ये सारी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन में होती है. नेक्स्ट, फिर आपने यहां आपका एड क्लोज हो गया, जब आपका मैजिक करके एंड रिजल्ट आ गया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स कम. व्हाई? आपने एड बना लिया, आपने बहुत अच्छा एड बनाया, बट यू डोंट हैव द मनी, या यू आर नॉट एक्चुअली शोइंग इट टू समबडी, देन व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग एन एड? सो वंस द एड इज डन, इट नीड्स अ मीडिया प्लानिंग टू एक्चुअली एग्जीक्यूट. आपको लोगों को तो दिखाना है कि आपने एड बनाया, एड बना के प्रॉब्लम स्टेटमेंट लोगों तक पहुंचानी है, फिर उसका सोल्यूशन आपको लोगों तक पहुंचाना है. तो वो आता है मीडिया प्लानिंग से, जो बेसिकली फहद मुझसे पहले जो प्रेजेंट कर रहे थे, वो पूरा मीडिया प्लानिंग जो होती है, वो पूरा डिजाइन वो बता रहे थे. ये सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है कि आपका मीडिया प्लान ठीक हो. आपका मीडिया प्लान आपके ब्रांड के, आपके कंज्यूमर के, आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से हो. आपने एक एड बनाया बहुत ही क्रेजी इलीट लोगों के लिए, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लग्जरी फील दिखा दी. उसके बाद आपने मीडिया प्लानिंग के अंदर प्लान किया कि यार मैं जो मीडियम सेलेक्ट करूं ना, वो अगर मैं होर्डिंग्स ले रहा हूँ, या मैं टीवीसी ले रहा हूँ, या मैं रेडियो ले रहा हूँ, या मैं प्रिंट पे जा रहा हूँ, या मैं डिजिटल एड्स दिखा रहा हूँ, या मैं मॉल के अंदर ब्रांडिंग ले रहा हूँ, या मैं डिजिटल एड्स ले रहा हूँ, उनकी लोकेशंस बहुत मैटर करती हैं. लग्जरी एड बनाने के बाद आप एक होर्डिंग लगा रहे हैं सुराग बोर्ड के ऊपर, या आप एक होर्डिंग लगा रहे हैं डिफरेंट जगहों पे जो कि एसईसी सी लोकेशंस है, तो वो पूरा मीडिया प्लान आपका बेकार जाता है. So your media plan has to be that strong. For example, आपने मीडिया प्लान टीवी का लिया, टीवी का आपने मीडिया बाइंग की, और आपने जियो ARY उस पे से हटा दिया, और आपने खैबर टीवी और इन जगहों पे लग्जरी एड लगा, क्या आपको लगता है वो चलेगा? नहीं. It won't give you the results. So media planning is that much important. जो एड की डिस्ट्रीब्यूशन है, किन चैनल्स पे हो रही है, वो बहुत जरूरी होती है. आप पहले उस एड का टीजर देते हो, फिर लॉन्च करते हो प्रॉपर, फिर सस्टेनेबिलिटी पे आते हो, तो ये पूरी एक फीजिबल कैंपेन बनती है इसके ऊपर. नेक्स्ट, फिर आप उसको ट्रैफिक, जैसे हम लोग क्या करते हैं इन फैशन, हम लोग जैसी एड हम बना लेते हैं उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, मॉल ब्रांडिंग, आउटडोर्स, टीवी, डिजिटल, डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर हम एग्जीक्यूट करते हैं. 360 डिग्री पूरा हम उसको लेके जाते हैं, कैंपेन लॉन्च करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि बिफोर
हमारे पास ट्रैफिक काउंटर्स होते हैं एट द स्टोर्स, तो हम देखते हैं कि बिफोर द लॉन्च ऑफ द कैंपेन एंड आफ्टर द लॉन्च ऑफ द कैंपेन क्या डिफरेंस आया है, क्या स्टोर पे ट्रैफिक जनरेट हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ बिफोर एंड आफ्टर, कितने लोगों को पता चला नहीं पता चला, वो हम फिर एक सर्वे भी करते हैं, पीपल आर कमिंग इन बाइंग और नॉट, इफ दे आर बाइंग व्हाट आर दे बाइंग, वेयर हैव दे सीन द एड, इफ नॉट देन व्हाई आर दे नॉट बाइंग। तो ये सारा सर्वे रिपोर्ट बताती है। तो आपको लॉन्च के साथ साथ पूरा ट्रैफिक को एनालाइज करना चाहिए, आरओआई चेक करना चाहिए। तो ये जैसे आपने ऐड बनाया, ऐड के बाद लॉन्च किया, लॉन्च के बाद आरओआई चेक किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा लगाया था और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड। अगर आप एक पार्ट कर लेंगे दूसरा पार्ट छोड़ देंगे, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग एन एड व्हेन यू डोंट नो द आरओआई ऑफ इट। नेक्स्ट, दिस इज द मेजरमेंट पॉइंट। आपकी ब्रांड अवेयरनेस पे आपने कितना आया, एड रिकॉल पे कितना आया, और सेल्स लिफ्ट कितनी हुई, जो मैंने अभी बात की। तो मेजरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत एक साथ चलती है दोनों चीजें, एंड दैट इज द सक्सेस फॉर एन एड। नेक्स्ट, so this is basically Salman presentation आप खत्म कर सकते हैं, thank you. So basically this is a overall overview of how the ad is being made, the creative part from the brief till the execution, and in the execution you design the media planning, media कौन सा करना है, and then you check the results. So from ad till the end ये पूरी एक साइकिल है जिसको हम, जो हर ब्रांड या मार्केटिंग का बंदा इसको फॉलो करता है, एंड दिस इज इंडस्ट्री प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री, भले फैशन हो, भले एफएमसीजी हो, भले कोई भी इंडस्ट्री हो, मार्केटिंग में ये जो स्टेजेस हैं ये इसको पूरे करने होते हैं। कोई एक भी स्टेज आपने मिस कर दिया ना, तो वो उस पे वो रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे और वो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा कभी भी। सो दिस इज बेसिकली फ्रॉम द एड जर्नी, फ्रॉम द आइडिएशन till the execution. So if you guys have any questions, so I'm here. Gee, anybody has any question about the whole journey of how an ad is made? Yes, Faisal, please. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल नबी साहब से ये है कि वी हैव सीन के हर वक्त, मतलब हर सीजन में या हर ईयर 4 बार जो है वो आप लोग प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं, ठीक है। सो हाउ वेल इन एडवांस यू गाइस प्लान के, मतलब कितना एडवांस में ये चीज़ प्लान हो रही होती है, क्योंकि आपने जो अभी जर्नी बताई फॉर द एड टिल द स्केच टू द टीवी, ये एक लंबा टाइम है मुझे जहां तक आइडिया हो रहा है इसमें। तो आप लोग कितना एडवांस में इस चीज को प्लान कर रहे होते हैं? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर ना देखो फैसल, ऐसा होता है कि आपके पास बहुत दफा ना, या तो जिस तरह इंडस्ट्री चलती है, पहले मैं ये बताता हूँ। एक पूरा ईयरली कैलेंडर बनता है कि आपकी पूरे साल में लॉन्चेस कौन कौन सी हैं, कब कब है। उसके बाद हम लोग इसकी बैक वर्किंग करते हैं बीइंग अ मार्केटर, के ठीक है अगर इस दिन लॉन्च है तो एटलीस्ट 10 डेज 20 डेज 25 डेज पहले वी नीड टू प्लान द शूट। और शूट जिस दिन प्लान होता है उसका मतलब है उससे पहले मुझे पूरी ब्रीफ रेडी करनी है। तो इट्स अ 45 50 डेज 60 डेज का पूरा टाइमलाइन किया जाता है। आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अगर मैं फैशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो आइडियल सिनेरियो होता है। एफएमसीजीज में 6-6 महीने में ऐड बनता है, ठीक है, जो मेरी अभी बात हुई थी सबसे, तो एफएमसीजी में टाइम लगता है। मगर आप फैशन की बात करें, क्योंकि फैशन इज समथिंग सो फास्ट कि आपके पास अब टाइम नहीं है। ये मैं जो आपको सिनेरियो बता रहा हूँ ना, ये हम बहुत दफा 20 डेज के अंदर क्लियर कर देते हैं, फ्रॉम द आइडिएशन टिल द एंड। बहुत दफा हमें 15 डेज के अंदर ये पूरा प्लान करना होता है। बहुत दफा कैंपेन्स जो है वो ऐसे आती हैं कि ओ ये सेल्स आर डाउन, we need to plan something, these are the products we can launch, so what we do is एक दिन में बैठे, डिजाइन किया, चीजें की, ओके फाइन, स्टेप्स हम मिस नहीं करते, शॉर्टन कर देते कि ब्रीफ हम बहुत लंबी नहीं करते, छोटी करते हैं। ओके फाइन, ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसकी डायरेक्शन ये करते हैं। मूड बोर्ड बनता वही है, आइडिएशन भी बनेगी, मूड बोर्ड भी बनेगा, उसके बाद एड पीपीएम भी होगी, प्रोडक्शन भी होगा, मगर ये एक 2 दिन के गैप से सारी चीजें हो रही होती है, ये क्विक हो रहा होता है। आइडियल सिनेरियो के अंदर हम 45-50 डेज के अंदर एक पूरी फैशन की शूट प्लान कर रहे होते हैं। बिकॉज हमारी, आप जैसे बात कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल
अगर मैं बात करूं अपनी सना सफीनाज की, तो आपका रेडी टू वेयर की लॉन्च होती है, 10 दिन बाद आपका मसलिन की लॉन्च है, 10-15 दिन बाद माही की लॉन्च है, फिर 10-15 दिन बाद लॉन की लॉन्च है। अगर आप समर्स की बात करें तो इसी तरह से होता है। तो उसके लिए हम लोग दिसंबर से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जो रेडी टू वेयर की फर्स्ट लॉन्च होगी वो अगर जनवरी एंड में होगी तो मैं दिसंबर के अंदर शूट कर रहा हूँ उसका। तो इसी तरह से ये सारी चीजें ना प्लान बाय प्लान चल रही होंगी। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है, उसकी ब्रीफिंग चाहिए होती है, पहले से प्रोडक्ट देख रहे होते हैं क्या है, क्या मूड बोर्ड है, किस तरह से करना है, प्रॉब्लम कहाँ है, किसको एड्रेस करना है, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा वीक है उनको पुश करना है। तो ये सारी प्री प्लानिंग सारी चीजें ना महीने पहले हम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, 4-4 कैंपेन्स हम लॉन्च करते हैं, मगर हम स्टार्ट दिसंबर से करते हैं ताकि उसको टाइम दे सके। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज वी हैव टू बैक टू बैक शूट्स होते हैं फिर हम लोग के, 4 दिन का शूट, 3 दिन का शूट, एक शूट से फ्री हुए नेक्स्ट डे फिर शूट। ऐसा भी हुआ है कि हम लोग ने बलूचिस्तान में शूट किया एंड हम वहां सॉरी लाहौर में शूट किया, लाहौर से शूट करके हम फ्लाई करके कराची एयरपोर्ट पे आए हैं, वहां से हम गाड़ियों में बैठे स्ट्रेट गए बलूचिस्तान, वहां जाके शूट किए एंड देन वी केम बैक टू कराची। सो इट इज हम फिर ये जी 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 सॉरी, मैं दूसरा एक और सवाल जो है वो कंटिन्यूस करने जा रहा हूँ, अगर मैं किसी का टाइम ले रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल इस चीज का आइडिया है बिकॉज आई हैव बीन स्टडीइंग द पैटर्न सिंस लास्ट 12 to 15 years, सिंस कि ये हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को, और दे स्टार्टेड देयर ओन ब्रांड्स इन पाकिस्तान. So I have been seeing billboards in the summers when you guys are launching, the lawns. Everywhere there is a lawn board everywhere. So that's why I was, it has been in my brain since quite some time, this question. So that's why I asked. नहीं अच्छा किया आपने पूछ लिया। नहीं हम इसीलिए, और पता है मैं इससे एक रिलेटेड आपको चीज बताऊं, सॉरी उमर जस्ट 1 मिनट, इससे रिलेटेड एक चीज बता रहा हूँ। जिस तरह की बाइंग है ना, आपने आउटडोर्स देखे, अब हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि एक कैंपेन खत्म नहीं होती, दूसरी कैंपेन क्लब करनी होती। तो हमारे लिए जो मीडिया बाइंग है ना, वो 50 to 60 डेज या 70 डेज की फिर हम बाइंग एक साथ कर रहे होते हैं। बिकॉज जो आपके वेंडर्स हैं, जो आउटडोर के वेंडर्स हैं, वो ये नहीं कर सकते कि 10 दिन लगाया, 5 दिन बीच में छोड़े या 10 दिन बीच में छोड़े फिर आपने दूसरा बाइंग की। वो कहते हैं सर बीच में तो हमारे लिए बहुत मसला है। ये आपको जो फहद है वो भी अच्छी तरह बताएंगे कि आपकी जो बाइंग होती है ना वो फंस जाती है। देन यू हैव टू स्पेंड मोर इस पे, और एक क्लब करके आपको बाइंग करनी पड़ती है मॉल की, बी इट आउटडोर्स बी इट टीवी, बिकॉज आप फिर बहुत ज्यादा फंस जाते हो, बिकॉज आपको फिर स्लॉट्स नहीं मिलते। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इट्स अ वॉर अगेंस्ट द लॉन। आपने देखा होगा हर जगह पाकिस्तान में लॉन के एड हर कोई लड़ रहा होता है, और हमें बाकी साइट्स नहीं मिलती और उनके रेट्स भी स्काई रॉकेट हो चुके होते हैं। सो व्हाट वी डू, we plan and we buy those slots for at least 50 to 60 days, बिकॉज मेरी अगर 60 डेज में 4 लॉन्चेस हैं तो मुझे वेंडर बीच में गैप नहीं देगा। तो ये भी एक चीज है कि आपको ये मीडिया प्लानिंग भी इतनी इंपॉर्टेंट है, एड से ज्यादा मीडिया प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। आपने एड बना लिया, मीडिया प्लानिंग अच्छी नहीं की ना, तो आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। दिस यू हैव टू मेक श्योर। यस उजैर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप सना सफीनाज के मार्केटिंग हेड हैं, तो सर आप जब भी कोई नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं और उसकी कैंपेन को जनरेट करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है? क्योंकि फैब्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, और इसमें फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो लेके आ रहे हैं जिसकी प्राइस रेंज है 10,000 से 12,000 रुपये के बीच में। तो उसमें हमें अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना पड़ेगा, और अपनी फॉर एग्जांपल हम एक नॉन के प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो हमें अपने प्रीवियस प्रोडक्ट्स को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसी आप लोगों की जो स्ट्रेटजी होती है वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है कि आप ये अपनी नई प्रोडक्ट की जगह भी मार्केट में बनाना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपकी प्रीवियस प्रोडक्ट भी बिकती रहे उसी तरह से? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब थोड़ी सी ना मैं ये बताता हूँ, इंडस्ट्री ना चेंज हो गई है, फैशन इंडस्ट्री। पहले फैशन इंडस्ट्री होती थी कि आपने एक चीज लॉन्च की और लोग उसकी तरफ चले गए, और पहले आपके पास ना ऑप्शंस भी कम होते थे। आप अब देखें आपके पास कितने लॉन के ब्रांड्स, कितने अनब्रांडेड चीजें, कितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे सिलाई प्रेड, आई कैन नेम लाइक
20-30 जो कि अभी ऑनलाइन काम कर रही हैं, दे आर नॉट वेल नोन बट ऑनलाइन दे आर नाउ वेल नोन. दे डोंट हैव एनी स्टोर्स बट स्टिल दे आर इन द मार्केट एंड पीपल आर बाइंग इट फ्रॉम देम. सो आपने जो बात की कि हमें पुराने को किस तरह करना पड़ता है और नए को हम किस तरह से करते हैं, तो इस वक्त फैशन चेंज हो गया है. लोगों को अब इसकी परवाह नहीं होती कि यार ये प्रोडक्ट जो है हमें कुछ 4 दफा 5 दफा पहनना है. अब फास्ट फैशन हो गया है. आपने हमें ये भी फिक्र नहीं होती मेरा पुराना नहीं बिकेगा, वो मुझे पता है मेरा सेल पे निकल जाएगा और कस्टमर्स हु आर कमिंग इन फॉर द न्यू प्रोडक्ट दे विल सी द ओल्ड प्रोडक्ट एंड दे विल बाय इट. मेरे पास इस वक्त जो फाइट है ना वो स्टॉक की होती है. आई नीड द स्टॉक इन माय स्टोर्स एंड एट माय ई स्टोर्स. ठीक है. Why the customers who are coming in, they should have the variety and the right price. इस वक्त कस्टमर्स क्वालिटी नहीं देख रहा फैब्रिक की, ये चीज याद रखें. वो अगर कोई चीज खरीदने जा रहा है ना, तो वो खवातीन स्पेशली एंड जितनी भी यहाँ खवातीन है, दे विल एग्री टू इट. यू गाइज विल वेयर एक सूट एक जगह पे, वो सूट दूसरी जगह पहना जा सकता है, उस जगह पे नहीं पहन सकते. अब इंस्टाग्राम का दौर है, वो पिक्चर हो चुकी है, उसकी इंस्टा पे लग चुका है, वो चीज मैंने देख ली है सबने, और अब मुझे ये मैंने यहाँ पहन लिया तो मैं ये चीज यहाँ नहीं पहन सकता, मैं दूसरी दावत में पहनूंगा. अगर आप जो 10 से 12,000 15,000 की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सो ये उसकी लाइफ जो है ना वो 4 से 5 दफा की हो गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज फीमेल्स आर हियर, तो इफ यू डिसएग्री तो प्लीज लेट मी नो. नहीं सर, इस दुख से गुजरते हैं हम. So I think the married male can also refer to this. Yeah. So उसकी लाइफ ना थोड़ी सी कम हो गई है. So अभी कस्टमर्स क्या देख रहे हैं, नया प्रोडक्ट आया है, लेट्स गो बाय इट, अच्छा लगा ले लिया, फैब्रिक हल्का है कोई बात नहीं. अभी एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कैंपेन की थी, अपनी पूरी रीब्रांडिंग की है कंफर्ट पे. इट फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड, इट डिडंट वर्क आउट, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. उसका रीजन कॉज फीमेल्स आर नॉट लुकिंग फॉर द कंफर्ट राइट नाउ, दे आर लुकिंग फॉर स्टाइल एंड द राइट प्राइस. राइट प्राइस होगा, डिजाइन अच्छा होगा, दे विल बाय इट एंड दे विल कीप चेंजिंग इट. हर महीने कुछ ना कुछ, जो 5,000 से 10,000 की प्रोडक्ट होती है ना, वो जो फीमेल्स है वो ज्यादा बाय. अगर अब तो माशाल्लाह से वर्किंग वुमेन का परसेंटेज काफी बढ़ गया है, सो दे नीड न्यू क्लोथ्स एवरी मंथ. सो अगर आप वो सोच के बैठ जाएंगे कि कंफर्ट है, मैं ये 10 दफा पहनूंगी, अब ऐसा नहीं है. सो आपको कांस्टेंट जो आपकी भी बात थी फैसल के, इतने नए नए चीजें ला रहे हैं आप लोग, वो इसीलिए लाते हैं कि कस्टमर्स आर कीप डेवलपिंग द टेस्ट कि मुझे नया चाहिए, मुझे नया कुछ देखना है, मुझे नया कुछ देखना है. अगर मैं बताऊं ना, ये जो दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल एथनिक, खादी, दे आर मेकिंग 800 to 900 डिजाइंस विद इन 3 months to 2 months के स्पैन में. सो उनके इस तरह से डिजाइन चेंज हो रहे हैं. रीजन ही यही है, दे आर थ्रोइंग इट इन द मार्केट. द रीजन कस्टमर्स आर वांटिंग, दैट इज द इनसाइड नाउ. सो ये रिसर्च करनी बहुत जरूरी है. आप इनके एड्स देखें, दे आर वेरी सिंपल, नाइस, व्हाइट बैकग्राउंड पे शूट हुआ, क्विक और बहुत क्विक एड्स आ रहे हैं. वो इसीलिए आपके एड्स डेवलप किए जा रहे हैं. Yes. नहीं तो आपके लिए बहुत सारे सवालात का अंबार जमा हो चुका है, मतलब 5 क्वेश्चंस इन अ रो. सर एक दो सवाल मेरे और हैं. सर आपने ये बात करी, लेकिन आप लोग कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की कैंपेन बनाते हो तो मेन कोर ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है? अपने कॉम्पिटिटर को किस तरीके से देखते हैं कि वो किस जगह मार्केट कर रहा है और आपने किस जगह, मतलब कि आप लोग कुछ सेम जगह पर ही टारगेट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल, या फिर अपनी यूएसपी को शो कराते हैं? मतलब हर प्रोडक्ट के लिए अलग ऑब्जेक्टिव होता है. जी बिल्कुल. देखें, आपकी पहली चीज, हर ब्रांड का अलग अलग कैटेगरी है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रेडी टू वेयर है, मेरे पास एक मसलिन है, उसकी आइडेंटिटी इज डिफरेंट, उसकी टारगेट मार्केट इज डिफरेंट. मेरे पास माहे है, उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, उसकी मार्केट डिफरेंट है. मेरे पास एक नूरा है, उसकी मार्केट टोटली अलग है, उसकी टारगेट ऑडियंस टोटली अलग है. तो मैं हर एड पहले उस कैटेगरी को देखता हूं कि इस कैटेगरी में मेरे पास कौन कौन से ब्रांड्स बैठे हैं, इस कैटेगरी के कौन कौन से ब्रांड्स के बाद कौन कौन सी कैटेगरीज बैठी हुई हैं जो वो मार्केट कर रहे हैं. हम लोग जब एड डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसकी जो फील है, जो उसकी मजलिन की फॉर एग्जांपल थॉट है, माही की जो अपनी थॉट है, उसको नजर रखते हुए हम कर रहे होते हैं. एंड वी फोकस ऑन द स्टाइलिंग मोर देन द प्रोडक्ट फीचर. आपने अगर देखा हो हमारी सना सविनास की या किसी की, उसमें भी प्रोडक्ट की कोई बात नहीं कर रहा होता. वेरी कंफर्टेबल,
वेरी सॉफ्ट, इस तरह की कोई बात नहीं मैच्योर कर रहा मार्केट है ना, बिकॉज मैच्योर मार्केट में ये यही Exactly. फीचर होता है कि मैच्योर मार्केट के अंदर यू डोंट टॉक सिर्फ अबाउट फीचर्स, यू बिल्कुल, टॉक अब वो अबाउट कोई अपनी यूएसपी यूएसपी। की बात नहीं करता। अब क्या बात होती है, या तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी प्राइस बहुत अच्छी है ना, तो आप कर दोगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्राइस, या 3 पीस एट 399, ये आप बात कर सकते हो। मगर कोई अब वो क्विक क्विक आपको डिजाइन दिखाएगा, अच्छा सा एक मूड बोर्ड सेट होगा, अच्छा दैट एड नीड्स टू बी नाइस, दैट्स इट। इस वक्त वो चले गए कॉन्सेप्ट, जब आप कपड़े की बात करेंगे, एम्ब्रॉयडरी की बात करेंगे, वो अब कुछ भी नहीं है। तो अब इट्स अ फास्ट फैशन नाउ। तो ये चीज सर थोड़ा, सॉरी सर आपकी बात करो सर, दूसरा सवाल क्वेश्चन कमिंग इन फ्रॉम एनालाइज, ट्रैफिक उजैर। एनालाइज की हमने बात करी थी कि एड लॉन्च के बाद ट्रैफिक आप लोग किस तरीके से एनालाइज करते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं या फिर अच्छा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है एड लॉन्च के बाद? ठीक है। एड लॉन्च के बाद, अच्छा आपके जो स्टोर्स है ना, देयर इज अ सॉफ्टवेयर शॉपर वैल्यू। आपके स्टोर्स के ऊपर एक काउंटर लगता है, ट्रैफिक काउंटर, जो मॉल्स के अंदर भी होता है। अब हर कोई इज इंस्टॉलिंग दैट बिकॉज इट इज नेसेसरी। तो वो एक काउंटर है जो आपके स्टोर्स के ऊपर, जब आप एंटर होते हैं तो आपने देखा होगा वो बार्स होते हैं, वर्टिकल बार्स लगे हुए होते हैं, और एक ऊपर एक डिवाइस लगी हुई होती है एंट्रेंस पे। तो व्हेनेवर यू एंटर, वो एक काउंटर वन कर देता है, उसको काउंटर चला रहा होता है। तो ये इस तरह से हम अपने तो हमारे पास जो डैशबोर्ड है, इट्स अ सीआरएम सॉफ्टवेयर, शॉपर वैल्यू, उसके ऊपर हमारे पास कस्टमर का डेटा भी, वो कस्टमर्स भी आ रहे होते हैं कि कितना ट्रैफिक आज इस स्टोर पे एंटर हुआ है, कितनी सेल्स आई है, ये सब उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होते हैं। तो इससे हम जज कर रहे होते हैं। we have सर इस बात को, मैं इस question क्वेश्चन को coming थोड़ा in। क्लियर करवाना चाहूंगा। सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि काउंटर आप चेक करते हैं कि मतलब ऐड के बाद कितने कस्टमर आ रहे हैं, स्टोर विजिट कर रहे हैं, हो सकता है वो शायद रैंडम आ रहे हो या कोई सीजनल चल रहा है, जैसे दिसंबर आएगा तो सेल्स लग जाएंगी सब स्टोर्स के ऊपर, मे भी बिल्कुल, उसने ऐड ना देखा हो और वो आके बिल्कुल ऐसी, रैंडमली बाय करके जा रहा हो, तो हम बिल्कुल हमें ऐसी कैसे है। पता चलेगा कि यार वो रैंडमली आके बाय करके गया है सेल की वजह से, या हमारे ऐड की वजह से बाय करके गया? अच्छा यार, गुड क्वेश्चन। देखो, इस तरह तो आप ना कभी भी कुछ नहीं बता सकते, ये एक असम्पशंस होती है। आपने अगर एड डिजाइन किया है और आपने एड रन कर रहा है और आपके स्टोर पे आ गया, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, वो मॉल में घूम रहे होते हैं, बस आ जाते हैं। उसके लिए अभी रिसेंटली इस वीक मैंने एक सर्वे किया एट द स्टोर्स। मैंने अभी, मेरी मजलिन और माही लॉन्च हुई, रेडी टू वेयर लॉन्च हुई, मैंने एक सर्वे किया कि पीपल हुआ कमिंग इन, आप लोगों ने क्या ऐड देखा, क्या आप लोगों को स्टोर में आने से पहले पता था कि मजलिन लॉन्च हुई? तो मेरे पास वो आंसर्स आ गए कि मेरे पास 800 कस्टमर्स में से 600 कस्टमर्स ऐसे थे जिनको पता था जी मजलिन लॉन्च हुई है, हमने देखा है। कहाँ देखा है ऐड, मैंने वो भी डिफाइन किया हुआ था। देयर वाज अ स्मॉल क्वेश्चन जो हर कस्टमर जो आ रहा था मैंने उससे फिल करवाया। तो आप इस तरह से इसको ट्रैक कर But this सकते हैं। cannot be a regular activity. This was It cannot be a regular just because activity. आप नहीं कर सकते। आप ये तो वही बात हो गई कि रिटेल की शॉप है, उसमें कितने वॉक इन हुए और बिल्कुल कितना सक्सेस रेशियो, आप इसको मेजर कर ही नहीं सकते नहीं कर एक्यूरेटली। सकते। ये डिजिटल साइट थोड़ी है जिसपे सारे एग्जैक्टली, आपके आ डिजिटल जाए। वेबसाइट पे बिल्कुल होता है कि आपके पास इतना ट्रैफिक आया, इतना कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर देखो, कोई कन्वर्जन एग्जैक्ट नहीं होती, ये बेस्ड होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और आपको उनका मानना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव एनी मीडियम लेफ्ट। 8 क्वेश्चंस हो गए नवीद आपके लिए। सॉर्ट ऑफ तौलिया असम्पशन। आपका एक क्वेश्चन है, प्लीज सीक्वेंस में चलते हैं। सर तौलिया मेरे आपका कोई सर एक सवाल है? क्वेश्चन और सर सर वेट कर सर लें मेरा थोड़ा सा, क्वेश्चन और है। एक मिनट और भी लोगों को मौका दें, और भी लोगों को मौका दें। वी आर ओनली हैविंग 5-6 मिनट्स। वालेकुम जी सलाम। अच्छा सर, आपने बात करी थी कि हम एड्स रन कर रहे होते हैं और हम उसको मेजर भी करते हैं, पहले भी सेल्स से और सेल्स के बाद भी। लेट्स सपोज कि अब हमने अपनी कैंपेन बनाई और वो चली, इट्स वेल एंड गुड। नहीं चली तो हमारे फिर मेजर्स क्या होते हैं? फिर हम किस तरीके से सोचते हैं, कहाँ हम अपनी चीज़ों को अलाइन करते हैं, कौन सा एक वे निकालते हैं कि हमने अब यहाँ नहीं ऐसे काम करना है? ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल चल गया तो ब्रांड तो ऑब्वियसली ब्रांड है, उससे तो काम करना ही है, सेल्स आपकी बिल्कुल हो गई। नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम? ठीक है, गुड क्वेश्चन। ये एग्जैक्टली यही चीज हमने अभी, जो मैंने आपको बताया ना, जो मैंने सर्वे कराया, उसका एक रीजन ये भी था कि मेरी एक लॉन्च पे वो रिजल्ट्स नहीं आए। ठीक है, ऑल्दो मैंने मार्केटिंग की थी। तो मैंने क्या किया, एक सर्वे किया। सही है, जब कोई कैंपेन नहीं चलती ना, तो उसका एक हफ्ते बाद फॉरन क्विक सर्वे किया जाए। पीपल हुआ लाइक 2 दिन बाद आपको, अगर कोई कैंपेन लॉन्च हुई है ना आपकी हाइप के बाद,
और आपने 2 दिन देखा कि ट्रैफिक इतना नहीं आ रहा, ना सेल्स कन्वर्ट हो रही है, आप तीसरे दिन अपना सर्वे कर लें फौरन, क्योंकि पीपल हु, बिकॉज आपका 7 डेज तक तो कैंपेन रन हो रही होती है टेक्निकली, मतलब लोग ज्यादा भी करते हैं, बट 7 डेज तो होती है, 7 to 10 डेज। तो आप थर्ड डे फौरन अपनी एक सर्वे करें, जो कि हमने भी किया, कि आप पीपल हु आर कमिंग इन एट द स्टोर्स, उनसे आपने सवाल पूछना है, ये एक तो मार्केटिंग क्या आपने देखी नहीं देखी, उसके बाद अगर उन्होंने कोई चीज खरीदी है तो क्या खरीदी है, ठीक है। जैसे अगर मजले ने, तो आपने मजल खरीदा, जी मैंने खरीदा, किस वजह से खरीदा, तो आपने वो रीजन लिया, स्टाइल अच्छा है, कट अच्छा है, मुझे एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगी, मुझे ये चीज अच्छी लगी। आपने अगर नहीं खरीदा, द कस्टमर इज गोइंग विदाउट बाइंग एनीथिंग, यू स्टॉप दैट पर्सन एंड हैव अ स्मॉल सर्वे। वही उसी सर्वे में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपने क्योंकि नहीं खरीदा, तो व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं लिया आपने, क्या आपको प्राइस ज्यादा लगी, यू नो देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स, इज द प्राइस रॉन्ग, यू थिंक द प्राइस वाज नॉट राइट, या आपको प्राइस ही लगा ज्यादा, आपको स्टाइल समझ नहीं आया, आपको टू मच एम्ब्रॉयडरी लगी, हैवी एम्ब्रॉयडरी लगी, लो लेस एम्ब्रॉयडरी लगी, या आपको वर्थ इट नहीं लगा, या आपको कलर्स पसंद नहीं आए। देयर आर सर्टेन 5-6 आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके डिजाइन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको कस्टमर वो जवाब दे देगा, जी जैसे मुझे बहुत आया जवाब के थोड़ा प्राइसी है, you know, because of the too much higher price, I'm not buying it. So if people are giving me this answer, so मेरे पास एक clear understanding होगी कि भाई ये product इस price में people are not buying it. So whatever, मैं फिर ये दोबारा rework होगी, जो मेरा next drop आए, I'll make sure to make the price lower. You know, I convey that to the designers कि भाई इसकी भी पूरी साइंस होती है कि एक प्रोडक्ट अगर बनाया, तो अगर वो महंगा है, तो उसके बाद वाला जो दूसरा ड्रॉप आ रहा है या दूसरी एक और कैंपेन आ रही है, उसकी जो कॉस्टिंग है ना वो कम हो, ताकि जो उसकी प्राइसिंग है वो उस हिसाब से हो। You know, this feedback has to be given to the designers, has to be given to the product. हम लोग डिजाइन वाइज भी पूरा एक फीडबैक लेते हैं कस्टमर से। जो डिजाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 डिजाइन लॉन्च किए मसलिन के, फिर मैंने देखा यार मेरे 2 डिजाइन तो हिट चल रहे हैं, मेरे 4 डिजाइन ठीक हैं, बट 4 डिजाइन जो है बिल्कुल नहीं चल रहे। तो वो जो 4 डिजाइन है ना, वो फिर डिजाइनर विल बी रिस्पॉन्सिबल कि ये 4 डिजाइन कस्टमर्स आर नॉट लाइकिंग, दैट मींस ये 4 डिजाइन तो डिस्कार्ड होने चाहिए आपके, इस तरह का कोई डिजाइन नहीं आना चाहिए, और ये जो 6 डिजाइन है इस तरह के और रिपीट होने चाहिए नेक्स्ट ड्रॉप पे। सो ये जो आप कह रही है ना कैसे करते हैं, ये हमें सर्वे से ही पता चलेगा और कस्टमर्स से ही पता चलता है। Thank you so much, Naveed.